meaning of, what is the meaning of communication? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What is the meaning of communication? What is the meaning of communication? Raise your hand. जैसे वर्बल, जैसे कि वर्बल, विजुअल, सिंबॉलिक फॉर्म में, जिसमें कि मार्केटर जो है वो इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर को अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे. Basically, communication is a kind of thing through which we are basically communicating, or we can sending the messages to the consumer. Okay, in the term of marketing, if we are describe the communication, what we have to say, that communication is a method, or it is a strategy, or that is a part of promotion mix in which the company are using various strategy or elements such as advertisement, personal selling, sales promotion, okay, for promoting the brand, selling the goods and services, and satisfying the consumer needs. So communication is a kind of giving the information, sending the messages, and messages about what? Messages about the product and services. So ये होता है आपका communication. In last class we discussed 3 points, I guess. 3 points discuss किया था तोशी हमने. 3 points that is basically related with. Those points are related with the intangibility of services basically. ठीक है. So that is not as such relevant नहीं है वो जो हम लोगों ने लास्ट में 3 पॉइंट किया था. Still about some points. ठीक है. तोशी, please tell me one by one what are those points. हाँ मैम, पहला पॉइंट था intangible nature of service performance. Yes. दूसरा, first point is intangible nature of service performance. What does it mean? That whatever we are basically providing to consumers, whatever service we are providing, that is totally dependent upon the performance and experience, that because that is intangible, right? So it is a complex task to basically promote the product, promote the services as comparison to product. Second point, customer involvement in production. Customer involvement in production. Like what kind of services we are providing, उसमें customer कितना involve है, it matters a lot, right? यानी कि what are the involvement of the customers? If the involvement is very much high, ठीक है, in that case that is the basically ज्यादातर वो क्या है, pure services, right? तो ऐसे केस में हम किस तरीके से basically उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अगर उनका परफॉर्मेंस लो इन्वॉल्वमेंट है तो एज कंपैरिजन टू वहां पर जो हम प्रोडक्ट या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें और जो हाई इन्वॉल्वमेंट है, दोनों में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है? यानी इन द केस ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट, in the case of high involvement, we just need to promote the product or services, not product, actually services, in a different way. But in the low involvement, we just need to promote the product or services in different way. ठीक है? तो जहां ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, जहां पर ज्यादा आपके कस्टमर्स इन्वॉल्व होंगे, वहां पर आपको बेसिकली ज्यादा ट्रेन्ड एम्प्लॉइज वगैरह की जरूरत रहेगी, ठीक है? सो यहाँ पर इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स. नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर ना? सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी. सबको क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट, इवैल्यूएटिंग सर्विस ऑफरिंग. ठीक है, वॉट एवर यू आर बेसिकली ऑफरिंग द सर्विस, वॉट एवर काइंड ऑफ सर्विस यू आर ऑफरिंग, ठीक है, कोई भी तरीके का सर्विस, आइदर दैट इज रिलेटेड विद एजुकेशन, आइदर दैट इज रिलेटेड विद मेडिकल फैसिलिटीज, कोई भी तरीके का अगर आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए यू हैव टू यूज द बेसिकली टैंजिबल क्लूज. टैंजिबल क्लूज शुड बी देयर, यानी कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ टैंजिबल चीजों को दिखाइए ताकि जो कस्टमर्स हैं वो इजीली इवैल्यूएट कर सके आपके सर्विस को. लाइक इफ यू विल फाइंड दैट कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई स्कूल है अपने टैंजिबल चीजों को, लाइक बिल्डिंग्स को, वहां के फैसिलिटीज को शो करेगा, तो कहीं ना कहीं वी कैन इजिली डिटरमाइन दैट दिस इंस्टीट्यूट विल गिव अस बेटर फैसिलिटी और सर्विस एज कंपैरिजन टू अदर. बट द प्रॉपर इवैल्यूएशन इज नेवर डन in the services because that is totally based on the experience. ठीक है? It might be possible because of the tangible things we are able to evaluate the services, but we'll find something different when we are experiencing that. जब हम experience ले रहे हैं, हो सकता है कि हमारा जो proper evaluation हो वो हो सकता है properly 100% सही ना हो.
बट अगर सिर्फ सर्विसेज की बात करें तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रमोशंस, एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस एज वेल एज द टैंजिबल थिंग्स, राइट? क्लियर हो गया सबको? ओके. Today we are going to complete 2-3 things. First, that what are the basic elements of communication mix. We'll complete all those things. And the second one is push and pull strategy. We'll complete that as well. ठीक है? What are the advantages and disadvantages of that? तो वो भी हम complete कर लेंगे. So एक करके एक point बताते जाओ तोशी. First point, that is the personal communication. First point is personal communication. एंड पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में बहुत सारे पॉइंट्स है ना. सो फर्स्ट पॉइंट पर्सनल कम्युनिकेशन में आपका पहला है दैट इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग, एज द नेम इज सजेस्टिव, आई गेस कि नेम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर व्हाट इज द थिंग दैट द पर्सन, दैट द कंज्यूमर जो है उसको स्पेशली हम क्या करेंगे, उसको हम बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करेंगे. यानी जो यहाँ फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा, द फेस टू फेस इंट्रैक्शन विल बी डन एंड द कस्टमर एंड सेलर जो है वो बेसिकली जो सेलर होगा कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, पर्सनली कम्युनिकेट करेगा और प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने की कोशिश करेगा. पर्सनल सेलिंग दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा आपका. यहाँ पर सेलर्स और रिटेलर, सेलर्स और जो आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो बेसिकली आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. ये टू वे होगा हमेशा. यानी कि इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट अगर हम देखते हैं या न्यूज़पेपर में हमने कोई भी एडवर्टीजमेंट देखा, इफ वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दैट पर्टिकुलर सर्विस, वी कैन नॉट गेट द आंसर एट दैट टाइम ओनली. बट इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग दैट इज द टू वे. यहाँ पर दो टू वेज चल रहा है कम्युनिकेशन. सो द सेलर कैन इन्फ्लुएंस द कस्टमर एज वेल एंड कस्टमर विल गिव द फीडबैक. ठीक है. पर्सनल सेलिंग में एक और चीज होता है कि जो बेसिकली रिजल्ट क्या है इस पर्टिकुलरली टाइप का जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको एट द टाइम दिख जाएगा. यानी उसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है, यू विल गेट एट दैट टाइम ओनली कि कंज्यूमर कितना कन्विंस हुआ है या नहीं हुआ है. तो पर्सनल सेलिंग में लिखिए, पर्सनल सेलिंग इज अ interpersonal encounters, interpersonal encounters. पर्सनल सेलिंग में लिखिए. यस तोशी. सो पर्सनल सेलिंग इज डन फॉर व्हाट, बेसिकली यहाँ पर कस्टमर को एजुकेट करना, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, साथ साथ में कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, सर्विस के बारे में बताना, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, फीडबैक आपको एट द टाइम मिल जाएगा अबाउट द सर्विसेज एंड ऑल. ठीक है. तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग जो होता है एक इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन है, एक एनकाउंटर है किसके बीच में, बेसिकली सेलर और आपके कंज्यूमर में. एग्जाम्पल में जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे फर्म कोई इंश्योरेंस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दे आर यूजिंग द पर्सनल सेलिंग स्ट्रैटेजी. कई बार जो पर्सनल सेलिंग होता है दैट इज डोर टू डोर, मतलब कि घर जा जाकर के भी द कंपनी आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर सेलिंग द सम सर्विसेज. जैसे कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे इसमें इंश्योरेंस वाला भी चीज आएगा, इंश्योरेंस. ठीक है. और यहाँ पर बेसिकली फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, इसलिए दैट इज एक्सपेंसिव एक्चुअली. ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव है. इसमें यू नीड सो मेनी trained employees who are able to convince the consumer. ठीक है, कस्टमर को कन्विंस कर सके, कंज्यूमर को कन्विंस कर सके, उसके लिए यू नीड ट्रेन्ड एम्प्लॉइज एज वेल. ठीक है. साथ साथ में यहाँ पर और भी चीजें हैं कि कई बार ये जो है ना डायरेक्ट कंज्यूमर तक के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता प्रॉपर्ली. यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचना कई बार कंपनी के लिए मुश्किल होता है. लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है कई बार कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी ये चीज करती है. यानी बिजनेस टू बिजनेस में आपके पर्सनल सेलिंग, जैसे इसमें डील करना हो या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो, तो इसके लिए पर्सनल सेलिंग को यूज करती है. यानी फेस टू फेस इंट्रैक्शन इज डन समटाइम इन B2B. ठीक है. यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट के लिए कई बार पर्सनल सेलिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपैरेटिवली टू लाइक डोर टू डोर कंज्यूमर को कन्विंस करना उससे. ठीक है. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पर्सनल सेलिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मार्केटिंग. व्हाई? बिकॉज इन सर्विसेज रिलेशनशिप वर्क्स. यानी कि यू विल नेवर
टेक इंश्योरेंस फ्रॉम समवन हु इज अननोन फॉर यू। स्ट्रेंजर से आप कभी भी कोई भी इंश्योरेंस नहीं लीजिएगा, बल्कि आप किसी नोन पर्सन से लीजिएगा। उनको आप, वो आपके घर आएंगे, वो विजिट करेंगे, फेस टू फेस आप इंटरेक्ट करोगे उनसे, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन विल बी डन, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और फिर वो आपको कन्विंस करेगा अबाउट द इंश्योरेंस एंड यू विल टेक द प्लान। सो इन सर्विस वी कैन से, इन प्रोडक्ट वाले केस में क्या होता है मैं बताती हूँ, पर्सनल सेलिंग को थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होता है, यू विल डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रेजेंट योर प्रोडक्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। बट ये चीज सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करना इट इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैन कन्विंस द कस्टमर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। तो इसके लिए बेसिकली सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट और रिलेशनशिप की वजह से कह सकते हैं हम लोग कि पर्सनल सेलिंग कहीं कहीं काम आता है, डोर टू डोर में, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का काम हो। अदरवाइज सर्विस सेक्टर में, बिजनेस टू बिजनेस वाला जो सर्विस सेक्टर है, उसमें ज्यादातर यूटिलाइज होता है आपका पर्सनल सेलिंग। तो और अगर नॉर्मली हम देखें तो पर्सनल सेलिंग जो है दैट इज द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बट इन सर्विस समटाइम इट्स नॉट वर्क प्रॉपरली, बट इन सम सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल, if there is a trust and the person is not a stranger who is selling the insurance, it will work. तो ये वाला सिचुएशन होगा आपका पर्सनल सेलिंग में। समझ में आया पर्सनल सेलिंग में मैंने क्या बताया? स्टार्ट करते हैं फिर से। सो इन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, सबको क्लियर हो गया पर्सनल सेलिंग क्या होता है? ठीक है, लाइक यहाँ पर आप कई बार प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना होता है, जैसे कोई महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीजें की नेटवर्क मार्केटिंग, यस, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार पर्सनल सेलिंग का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसमें अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, नए नए मेंबर्स को ऐड ऑन करना चाहते हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जहां पर यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट बाय मेकिंग द पर्सन कंज्यूमर एज वेल एज मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी उस पर्सन को आप प्रोडक्ट सेल भी करोगे और उसको मेंबर भी बना लोगे, फिर वो आगे चल के बाकी लोगों को जोड़ेगा, है ना। फिर वो इस तरीके से एक चेन की तरह चलता है। सो इन पर्सनल सेलिंग इज वेरी मच यूटिलाइज इन द network marketing, that is true, ठीक है। and one more thing I just want to add on in this, like personal जो selling होता है, पर्सनल सेलिंग जैसे कई बार यूटिलाइज तब होता है जब आप कुछ लॉन्ग टर्म के सर्विसेज अडॉप्ट कर रहे हो या कोई एक्सपेंसिव चीजों को ले रहे हो, सर्विस को ले रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई टैंजिबल चीज लेना, लाइक बिल्डिंग में, मतलब अपार्टमेंट में आपको एक फ्लैट खरीदना है, तो उसके लिए भी जैसे कोई पर्सन आपके यहाँ आएगा, एक्सपेंसिव चीजें हैं तो वहां पर इंट्रैक्शन होगा पर्सन से जो सेल कर रहा है अपार्टमेंट। कोई इंश्योरेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो यू विल पर्सन, कई बार पर्सन आपके यहाँ विजिट कर सकता है, एक फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो सकता है, राइट। सो एक्सपेंसिव चीजों के लिए पर्सनल सेलिंग, एक्सपेंसिव सर्विस या लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए पर्सनल सेलिंग इज सुटेबल। इवन अगर कोई एडमिशन भी लेता है तो वहां पर भी पर्सनल एक तरीके से क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में, कंसल्टेंट और स्टूडेंट के बीच में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर्सनल सेलिंग जो होता है, you will convince the people, you will convince the consumer, but you will never determine कि that the sale will make or not, यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नहीं, कोई इसका श्योरिटी नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज कस्टमर, सेकेंड पॉइंट कौन सा था, टेलीमार्केटिंग, राइट, टेलीमार्केटिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीमार्केटिंग? यहाँ भी कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो पर्सनल कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर जो तरीका होगा, वी आर यूजिंग द टेलीफोन फॉर दिस, ठीक है। यानी कि टेलीफोन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द कस्टमर्स। जैसे कई बार आप कभी कोई सर्विस लेना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई ऑनलाइन ऐप वगैरह यूज कर रहे हो सर्विसेज के लिए, तो वेन एवर यू विल अपॉइंट सम अपॉइंटमेंट वगैरह लोगे, यू विल गेट द कॉल फॉर द कंफर्मेशन, यू विल आस्क फॉर द पेमेंट। कई बार आपको ऐसे भी कॉल आता है अबाउट टेलिंग अबाउट द सर्विसेज एंड न्यू प्रोडक्ट जो भी मार्केट में लॉन्च में। सो टेलीमार्केटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, बट लाइक पर्सनल सेलिंग, द पर्सन इज इंटरेक्टिंग फेस टू फेस, द फिजिकल प्रेजेंटेशन इज देयर, but in the case of telemarketing we are using the telephone for the communication purpose. Clear हो गया? Clear? Next point, customer service नहीं लिखवाया था, इसको लिख लीजिए। कस्टमर सर्विस नहीं लिखाया था, इसको लिख लीजिए। कस्टमर सर्विस में क्या होगा, बेसिकली जहां पर आपके कुछ एम्प्लॉइज होंगे कंपनी के जो कस्टमर को सर्विस देंगे, कस्टमर फॉर एनी कंप्लेन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इस
के लिए हमें क्या होता है, क्या मिलता है, यहाँ पर हमें फैसिलिटीज मिलती है बाय सो मेनी कंपनीज, जो हमें क्या चीज की फैसिलिटी देंगे कि एनी क्वेश्चन इज देयर, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, इफ एनी कंप्लेन इज देयर, देयर इज अ फुल डिपार्टमेंट, यस, कंप्लेन हैंडलिंग, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग इज देयर, कस्टमर सर्विस इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से सर्विस को डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी कस्टमर सर्विस होगा। तो कस्टमर सर्विस में लिखिए, employees in the customer service position, employees in the customer service position are often responsible for delivery of a variety of supplementary services. Employees in the customer service position, that is also a part of the communication mix, जहां पर भी मैसेज जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, just think that is a part of the communication mix. So employees in customer service position are often responsible for delivery of a variety of supplementary services, including providing information about what kind of services they are providing. If anyone have any questions regarding to the payments, regarding to the policies, then they can call to the helpline number or customer service number, right? So next लिखे, including providing information, comma, taking reservations, receiving payments, and problem solving. Employees in the customer service positions are often responsible for delivery of variety of supplementary services, including providing information, taking reservation, receiving payments, and problem solving. ठीक है, so यहाँ पर एक तरीके से service personnel will present at that place, and if there is any kind of questions regarding to services and all, they will solve that problem, and they will tell you about the policies, regulations, and the all type of information, whatever they have, they will going to inform you about it. ठीक है, so that is a part of the personal communication, consumer service, customer service. ठीक है, and sometime they can also give some additional services, like if you are calling for asking about the service, if you are asking about the basically what kind of service, about the timing and all, they will also influence you to basically using particular service or buying particular service. यानी कि वो आपको यहाँ तक कि influence भी करेंगे, अगर कोई नई service वगैरह आई होगी, कोई additional चीजें होंगी, तो they will also inform you about it. ठीक है, सो ये सारी चीजों के बाद भी दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट द न्यू फैक्ट्स, न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ भी होगा तो दे विल इन्फॉर्म यू, दे विल इन्फ्लुएंस यू फॉर यूजिंग द सर्विसेज एज वेल, मतलब आपको इन्फ्लुएंस भी करेंगे वो। नेक्स्ट, क्यों ये चीज पॉसिबल और क्यों ये इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का, लेट मी टेल यू दैट देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स। ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे एक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, सो द कंपनी इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर फ्रॉम एवरी मीडियम, हर एक मीडियम को यूज कर रहा है ताकि कस्टमर को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो यहाँ पर ये भी होगा कि वो कस्टमर सर्विस जो है वो बाकी चीजों में तो करेंगे हेल्प, इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल, बल्कि दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड दे विल टेल यू द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज, राइट। तो ये भी चीजें यहाँ पर मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हुए दे विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर ट्रेनिंग। नेक्स्ट कस्टमर ट्रेनिंग, जो भी मैंने कस्टमर ट्रेनिंग की तरफ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, जो बेसिकली कस्टमर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है,
अब ये किस तरीके की ट्रेनिंग देती हैं, जैसे कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग्स वगैरह दे रही हैं वो प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में कि कैसे उसको यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और वी कैन से प्रमोशन ऑफ सर्विसेज. ठीक है, सो सम फॉर्मल ट्रेनिंग्स आर गिवन बाय द सर्विस सेक्टर. ठीक है, मे बी एक ट्रायल की तरह बता सकते हो उनको, ट्रेनिंग दे सकते हैं किस तरीके से आप सर्विस यूटिलाइज कर सकते हो. तो फॉर्मल ट्रेनिंग्स आर ऑल्सो गिवन, मतलब कस्टमर शुड बी ट्रेन्ड. इन शॉर्ट कस्टमर को ट्रेन होना चाहिए इस तरीके की थीम को लेकर के, इस तरीके की मतलब स्किल्ड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए कस्टमर्स, सर्विस को कैसे यूज करना उसके बारे में नॉलेज. तो जैसे बताती हूँ मैं कि जैसे नो योर कस्टमर का सिस्टम आ गया था बैंक में अभी कुछ साल पहले. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ था बेसिकली कि कस्टमर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि केवाईसी के फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से फिल करके आपको सबमिट करना है बैंक में, राइट. So this is a kind of training program which is started by some banks so that they will help them that how they can fill the KYC and send it to the different banks, right. So यहाँ पर कह सकते हैं कि customer training is also a part of the personal communication. Clear हो गया? Next point. Next point. तो कस्टमर ट्रेनिंग जो है दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, और प्रमोशन के लिए इट इज ऑल्सो हेल्पफुल. नेक्स्ट, वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का क्या यूटिलाइजेशन है प्रमोशन में? आई थिंक इट इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिकली क्या, वर्ड ऑफ माउथ. रिकमेंडेशन मिलना दूसरों से या फिर किसी नोन पर्सन से. ठीक है, तो और वो भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से, लाइक फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके कुछ नोन फ्रेंड्स हो गए. when they will recommend you about, yeah exactly, recommend you about the different kind of services available, then definitely, even if someone want to visit the doctor, अगर किसको डॉक्टर के पास भी जाना होता है and that person have no idea about it, then if someone suggested कि you can visit to that particular hospital and all, so that is also a kind of mouth publicity, or we can say advertisement, word of mouth, right. So यहाँ पर recommendation from the other customer is the powerful communication and it is very much helpful for promotion of the services, right. So यहाँ पर आपके क्या क्या चीजें हो सकते हैं, even people का जो decision है that will also change because of the recommendation and because of the we can say word of mouth. ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजों को लिखना चाहते हो 2-3 लाइन, तो you can write about it, that recommendation from the other customers, recommendation from the other customers, recommendation from the other customers can have a powerful influence, can have a powerful influence on people's decision, on people's decision to use a service, to use a service, to use a service. ठीक है, to use a service. So word of mouth क्या है basically, recommendation from the other customers, and that will basically affect the decision of the customers. But sometime जो word of mouth होता है, word of mouth है, that is something which is beyond the control of the firm, because यहाँ पर advertisement भी हो सकता है, आपका promote भी हो सकता है brand, और वैसे वो आपकी इक्विटी को और आपके ब्रांड को डिस्ट्रॉयड भी कर सकता है, उसके इमेज को. समझ में आ रही है बात? यानी कि यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ जो है, दैट रिकमेंडेशन शुड बी इन पॉजिटिव वे एज वेल एज इन द नेगेटिव वे. ठीक है, तो दोनों तरीका यहाँ पर हो सकता है. क्लियर हो गया? सब लोगों ने लिख लिया? तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन हो सकता है वो आपका पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है, एंड दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. कंपनी किसी भी कंज्यूमर को बेसिकली उसके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकती. इफ द पर्सन एक्सपीरियंस नॉट, द एक्सपीरियंस इज नॉट गुड with some particular service firm, then definitely they are going to recommend other customers in the negative way, that please don't go for this service in this particular service firm. So it might be possible word of mouth. ठीक है, next यहाँ जो भी हमने कौन सी, the second one is personal selling हो गया, customer training, customer services, telemarketing, as well as last वाला क्या था, word of mouth. So all these are basically part of the personal communication. Clear हो गया? चलिए next point. Advertising. Next one is advertising.
So what is the meaning of advertisement? So advertisement अगर बात करें तो it is a kind of, we can say that is a part of communication in which we are sending the messages by using so many other elements such as television, newspaper, journals, ठीक है? And advertisement is always in the paid form. यानी for advertisement the service firm is paying some amount for बेसिकली एडवर्टाइजिंग अबाउट दैट सर्विसेज, यानी कि हमेशा ये पेड फॉर्म में होगा, यानी इसके लिए अच्छा खासा सर्विस ने अमाउंट पे किया होगा कि स्पॉन्सर्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हायर किया होगा ताकि वो एडवर्टीजमेंट को प्रॉपर्ली रेडी करे, डिजाइनिंग करे और उसके बाद उसको बेसिकली ब्रॉडकास्ट करवाए. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज इन द पेड फॉर्म एंड द ह्यूज और हेफ्टी अमाउंट द कंपनी इज पेइंग फॉर दिस पर्पस, फॉर एडवर्टीजमेंट, राइट? अब एडवर्टाइजिंग क्या होता है, वी ऑलरेडी आई थिंक हम लोगों ने किया है ना एडवर्टाइजेशन का, और ये अवेयरनेस बिल्ड करता है, इंफॉर्मेशन देता है, पेड फॉर्म में है, परसुएट करने के लिए यूज होता है, परसुएशन के लिए रिमाइंडर की तरह काम करता है. कई बार इन टेलीविजन यू विल सी एडवर्टीजमेंट अगेन एंड अगेन, ठीक है? एंड ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पे करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, साथ साथ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइक यू नेवर गेट एनी, यू कांट गिव एनी फीडबैक एट दैट टाइम ओनली. उस टाइम पे आप कोई फीडबैक नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देख करके, ठीक है? तो ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट में और क्या क्या पॉइंट है लिखिए. एडवर्टीजमेंट में पहला, एडवर्टाइजिंग में पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, एड वगैरह. एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टिंग इज समथिंग जहां पर आप कोई भी चीज टेलीविजन के थ्रू शो कर रहे हो, ठीक है? समथिंग वीडियो वगैरह आप कुछ शो कर रहे हो, ठीक है? तो चैनल को यूज करते हुए, तो ये आपके क्या होंगे बेसिकली ब्रॉडकास्ट. तो ब्रॉडकास्टिंग यानी कि टेलीविजन को यूटिलाइज करते हुए हम लोग किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं, यानी हाउ वी आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट. तो प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, ठीक है? तो जैसे आप लोगों ने कई बार एडवर्टीजमेंट, अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की भी एडवर्टीजमेंट, जर्नल वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर में जो हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं. प्रिंट फॉर्म में एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, जहां पर हम बेसिकली प्रिंट मीडिया को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर, जर्नल. और हमेशा याद रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज डन फॉर परसुएशन ऑफ द लार्ज कस्टमर्स और मास कंज्यूमर्स. वी जस्ट ट्राई टू कवर ऑल द कंज्यूमर्स, मास कंज्यूमर्स हमारे टारगेट होते हैं. हमेशा हम ऐसा इन्फ्लुएंस करेंगे यानी कि जो लोगों तक, बहुत दूर तक, बहुत सारे कस्टमर तक चीजें और इंफॉर्मेशन पहुंचे. तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया जो है, जहां पर न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, जर्नल्स की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, तो इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, सेल होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है. तो यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया को यूज करते हैं. ब्रॉडकास्टिंग, हर एक के घर में टेलीविजन है, एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन एज वेल. सो नाउअडेज द ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया एंड इवन द सोशल मीडिया, दैट इज द बेसिकली बेटर प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है? बट एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, वो हमेशा डिजाइंड होगा, यानी एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट में बना होगा, कुछ सेकेंड्स और कुछ टाइम के लिए होता है. जैसे अगर आप टेलीविजन में देखिए, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, 10 सेकंड का सिर्फ और सिर्फ वो आपका एडवर्टीजमेंट है. तो कई बार जो, और एक और चीज, आजकल जो है ना, एडवर्टीजमेंट को लोग अवॉइड कर रहे हैं, स्किप करके फिर वो आगे दूसरे बेसिकली प्रोग्राम्स वगैरह को या देखते हैं. तो आजकल एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है कस्टमर्स का. So they are basically avoiding the customers nowadays. And one more thing, that social media is utilized, but that is now becoming the frustration for the people. बार बार एक चीज को देखना, it is very much difficult. ठीक है? तो अभी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ये एडवर्टीजमेंट के, बट एडवर्टीजमेंट में सबसे ज्यादा अगर ट्रेडिशनल देखा जाए तो ब्रॉडकास्ट एंड न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा यूज होता है. प्रिंट मीडिया में मैगजीन्स, जर्नल्स, आपके न्यूज़पेपर वगैरह, जहां पर आप लोग देखते होंगे कि पर्टिकुलर कॉलम में यू विल गेट द knowledge about particular service, about the product. Clear है? Next point. Next, internet, social media, websites are utilized for this, browsers are utilized for this. For what? For basically advertising. ठीक है? When you will open some particular, अगर आप कोई site open करेंगे, you will get so many advertisement as well. So we can say the internet is also become the strong platform for advertisement of the services nowadays. ठीक है? Some and one more thing, that is direct mail.
ठीक है। डायरेक्ट मेल इज समथिंग वेयर यू कैन, प्रिंट मीडिया में आपके ब्राउचर्स, आपके प्रोस्पेक्टस वगैरह भी आ सकते हैं इसमें एडवर्टीजमेंट में। और एक और चीज आपका आएगा, दैट इज डायरेक्ट मेल। सम कंपनीज आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी डायरेक्ट मेल। वो क्या करती हैं, बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स को मेल करती हैं अबाउट टेलिंग अबाउट द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे लाइक एग्जाम्पल मैं आई एम टेलिंग यू दैट अभी एक मिड लाइफ है जो बेसिकली सर्विस देता है, किस चीज का, घर तक होम डिलीवर करता है आपके मेडिसिन को। सो आई वाज गेटिंग नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट। सम कुछ ऐसे भी आप मुझे मेल्स आते हैं, जैसे कि कोई कंपनीज है उसमें जॉब्स वगैरह हैं, या फिर कोई कंपनी जो कंसल्टेंट है, तो दे आर बेसिकली सेंडिंग द मैसेजेस मेल। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट मेल के थ्रू आप क्या करें, एडवर्टाइज कर रहे हैं अबाउट योर सर्विस। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कौन कौन से होंगे एडवर्टाइजिंग के पार्ट? ब्रॉडकास्ट, ठीक है, प्रिंट, इंटरनेट, डायरेक्ट मेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स प्रमोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है बेसिकली, जहां पर वी आर यूजिंग, दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म एंड दिस इज अ काइंड ऑफ बेसिकली यहाँ पर हम कूपन, सैंपल्स वगैरह का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सर्विस की बात करें तो इन सर्विसेज वी कैन गिव द ट्रायल सर्विस के लिए, जैसे कि कभी हम अगर कोई ब्यूटिशियन है तो वो कभी भी किसी पर्टिकुलर ब्यूटी मतलब सर्विस के लिए दे कैन कॉल फॉर द ट्रायल एंड ऑल, राइट। बट इन लाइक द प्रोडक्ट द डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट एज सच पॉसिबल यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं लाइक सेल्स प्रमोशन में? वी कैन यूज सैम्पलिंग, कूपन। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग इज नॉट इवन पॉसिबल इन सर्विसेज। ठीक है, सर्विस में कोई सैम्पलिंग बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट का कोई सैंपल जो है हमने ट्रायल की तरह कंज्यूमर को यूज करने के लिए दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार, एक पैकेट आपने बिस्किट परचेज किया, यू विल गेट अ स्मॉल बेसिकली कंटेनर, स्मॉल एक बहुत छोटा सा डब्बा होगा जिसमें हनी होगा। तो लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग, जब हमने कोई एक सैंपल प्रोवाइड किया किसको, कस्टमर को, फॉर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट। अगर वो बेटर रहा तो हाँ बिल्कुल फ्री सर्विस होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सैम्पलिंग होता है, आपको बस प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज होता है। Sampling is not possible in services, but sampling is a part of sales promotion. Sales promotion का basically main क्या काम क्या होता है, बेसिकली मेन एम क्या होता है कि आपके शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देना, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। सेल्स प्रमोशन इज नेवर इन द कंटिन्यूअस वे, या फिर बोल सकते हैं परमानेंटली कोई सेल्स प्रमोशन को यूटिलाइज नहीं करता, दैट इज फॉर सम लिमिटेड टाइम पीरियड, बट दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द कंपनी ऑन पॉजिटिव वे इन द लॉन्ग रन एज वेल, यानी लॉन्ग रन तक उसका क्या मिलेगा, हमें इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब सेल्स प्रमोशन में पहला तो हो गया सैम्पलिंग, जहां पर कोई प्रोडक्ट का हम स्मॉल या नॉर्मल साइज में क्या देते हैं, एज अ सैंपल हम देते हैं कंज्यूमर को यूज करने के लिए, एंड उनसे फीडबैक लेते हैं या फिर उनका रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो दैट इज अ सेल्स प्रमोशन। बेसिकली सेल्स प्रमोशन का एक और है काम कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम कंज्यूमर बनाए, यानी कस्टमर बेस को बनाना सबसे बड़ा मेन एम होता है सेल्स प्रमोशन का। और सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक्स होती है ना, वो मैन्युफैक्चरर भी यूज करता है और रिटेलर्स भी यूज करता है। यानी रिटेलर भी कई बार कोई चीज में डिस्काउंट दे देगा ताकि कस्टमर क्या हो, ट्रैफिक हो आपके स्टोर पे, मतलब फॉर इंक्रीजिंग द ट्रैफिक इन योर स्टोर, दिस सेल्स प्रमोशन इज यूटिलाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज बाय द रिटेलर्स। ठीक है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर, अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड द सेल्स प्रमोशन टेक्निक फॉर persuasion और फॉर इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक कूपन्स है। कूपन्स जैसे आपने कभी कोई सर्विस लिया, ठीक है, तो यू विल गेट द 500, जैसे आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने कई बार कुछ खाया एंड यू विल गेट द 100 रुपीज कूपन, बट दैट कूपन इज ऑलवेज यूटिलाइज। जो कूपन होता है वो हमेशा तब यूटिलाइज होता है जब आप कोई नेक्स्ट परचेज करते हो, या तो उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे आपने एक सर्विस लिया, मान लीजिए आपने मैकडीज में खाया तो आपको 100 रुपए का कूपन मिल गया कि आप नेक्स्ट टाइम जब फिर से when you will eat something there you will get 100 rupees discount on that particular प्रोडक्ट। सो कूपन ये होता है एक। सेकेंड, या तो कुछ किसी और कंपनी के लिए भी, हाँ बिल्कुल कस्टमर रिटेंशन के लिए होता है अक्षय ये, और कई बार कुछ और कंपनीज के लिए भी कूपन्स दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, आई यूज पेटीएम एंड आई गॉट
coupon of Mamaearth. Like if I'll purchase the product of Mamaearth, I'll get that particular 400 rupees discount on that. So coupons are utilized in the service as well, that if you will use any kind of service, they are going to give you coupons for that. When you will do the next purchase, then definitely you can basically redeem that coupon. Clear? Next, buy one get one free and all. ठीक है. So we can say that Vivek, clear हो गया बच्चे? That is a kind of free service. I am saying you just raise your hand, thumbs up. Clear हो गया? Okay. So मैंने बोला ही है आपको कि सैम्पलिंग जो होता है वो कभी भी 100% यूटिलाइज नहीं होता सर्विस में. हाँ, फ्री सर्विसेज आर प्रोवाइडेड लाइक सो मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम. दे आर गिविंग 1 month सर्विस, फ्री सर्विस, कि इफ यू वांट टू यूज इट, just try it. If you will find it's okay, then you can basically take the services in a continuous way, right? So we can say this is also a part of sales promotion. Yes, definitely it is a part of sales promotion. Next, discounts. Discounts is something when you will get some monetary benefit on some particular services. Monetary benefit in which term I am saying this? That example के लिए अगर हमने कोई एक सर्विस लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं एडमिशन लिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस दे आर नॉट डूइंग सो, बट अगर हमने कभी कोई सर्विस लिया, ऐसे कोई स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, सो हमें डिस्काउंट मिल जाता है. जैसे लाइक माय ब्रदर, ही टुक एडमिशन इन आकाश, सो ही गॉट 30% डिस्काउंट ऑन द पर्टिकुलर फी पैकेजेस. लाइक द पैकेज इज अराउंड 2.5 or something, and he got like 30% discount on that. So that is known as discount, where you will get some monetary benefit. ठीक है, and discount is about 2 or 3 strategies are there in discount. Like that is totally dependent on sometime they will take some scholarship test or something. ठीक है, so कई बार customers say they will expect some better performance and all, because so many students are there, they can't give everyone such discount. So कई बार ये भी strategy company adopt करती है, ठीक है, कि डिस्काउंट दे दिया. और इसमें भी 2-3 चीजें होती हैं, लाइक एक रेशियो बनाया जाता है, जैसे अप टू 30% और फ्लैट 30%, यानी डायरेक्ट 30% मिलेगा आपको डिस्काउंट, या अप टू 30%, मतलब कि 30% से कम कितना भी मिल सकता है, 5%, 10%, 15%. सो डिस्काउंट इज समथिंग विच ऑलवेज गिव द बेनिफिट इन द मॉनिटरी टर्म. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, gifts are also given as that is also a part of promotion. Like free gifts are given to the customer if you will purchase one particular, if you will take some, कहीं आपने travel किया and you will get some gifts because of आपने वो package लिया, ठीक है. So we can say if you will acquire any kind of services, in that case maybe the free gifts and the free packages and the free services are given to you. ठीक है, कोई free service उसके साथ attach करके आपको दे दिया, some gifts like gift, ठीक है. Next is prize and promotion. Definitely they will give you prizes and all according to contest they will organize for some customers, but the contest and these things are always for the loyal customer, for increasing the loyalty, for the customer retention, for promoting the brand and services. These kinds of sales promotion techniques are utilized. So in service as well, some service sectors are using this, like they are giving offers. Gold membership are available in Zomato, gold membership are available in so many type of services. If you'll adopt it, you will get the discount, you will get the coupons, ठीक है. Free gifts are there. Trial, like trial में वही आपकी कुछ services जो है कुछ time के लिए you will get in the free, ठीक है, like मैंने बताया था OTT platform का. So all these are the part of sales promotion. Clear हो गया? Yes, Vivek. मैम पब्लिक रिलेशन एक ऐसा चीज हो गया, मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया जिसमें कि डायरेक्टली मतलब पेड फॉर्म ये नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डायरेक्टली ये पेड फॉर्म नहीं है कि कोई पेड एडवर्टीजमेंट के तरीके से. बट जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई नेगेटिव इमेज या नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाता है, नेगेटिव न्यूज कुछ इस तरीके का हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में वैसे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशन टीम का सहारा लेती है और पब्लिसिटी करवाती है. यानी कि वो पब्लिक रिलेशन का जो टीम है वो टीम को पे तो करेगी, बट डायरेक्टली वो कुछ पे करके, मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है कि मैंने पे करके एडवर्टाइज करवाया, वैसे एडवर्टाइज नहीं होगा, बट वो पॉजिटिव कंटेंट, पॉजिटिव न्यूज, इन सभी चीजों के थ्रू प्रमोशन करेंगे कंपनी का. गुड, ठीक है.
So what is the meaning of publicity? Yes, Toshi, you want to say something? बोलिए दोषी. मैम वही पब्लिसिटी बताना था. हाँ बताओ. Public relation. Ma'am, in this we have to make relationship with customer, and then we have to talk about benefit of product and services to the customer. हो गया बेटा. Very good. चलिए. So public point that it is never a direct paid, that is in the never in direct paid form. Like इसमें कभी भी like advertisement, everything is like designed, everything is like मतलब हर चीज fixed होता है, कितने टाइम, इतने फ्रीक्वेंसी के लिए, इतने जर्नल्स के लिए, यहाँ पर everything is fixed. ठीक है, कौन से जर्नल में एडवर्टीजमेंट कराना है, कहां पर करवाना है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अगर वी आर यूजिंग द ब्रॉडकास्ट मीडिया. ठीक है, एवरीथिंग इज लाइक हर चीज जो है फिक्स्ड होगा. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है आई थिंक. चलिए, तो बेसिकली हर चीज में फिक्स्ड होगा, हर चीज सर्टेन होता है इन एडवर्टीजमेंट. ठीक है, बट इन द केस ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज समथिंग इन विच वी आर यूजिंग द टू एलिमेंट, दैट इज जर्नलिज्म and we can say media, reporters, media, journalist, इनके थ्रू आपके प्रोडक्ट की और सर्विस की पब्लिसिटी होती है. So publicity is beyond the control of the company. कंपनी कभी पब्लिसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती है. हाँ, बट सम पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने के लिए कई बार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करना, कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना इन द केस ऑफ व्हेन द न्यू सर्विस इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी. ठीक है, वी आर हायरिंग और वी आर बेसिकली यूजिंग द ब्रांड एम्बेसडर, हमने किसी सेलिब्रिटी को बनाया. सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द पब्लिसिटी. सी पब्लिसिटी इज ऑलवेज, जो कंपनी जो है वो किस लिए करती है, ट्राई करती है अपनी ब्रांड इक्विटी यानी ब्रांड के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए पब्लिसिटी को यूज किया जाता है. बट पब्लिसिटी जो है ना, बिकॉज इसमें मीडिया इन्वॉल्व होती है, तो कई बार कुछ ऐसे भी चीजें लाइक एडवर्टीजमेंट में हर चीज फिक्स्ड है, उसमें लाइंस जो बोले जा रहे हैं, जो पर्सन है उनको सब कुछ एक प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार होता है, स्क्रिप्टेड होता है एडवर्टीजमेंट. बट पब्लिसिटी इज समथिंग दैट इज नॉट स्क्रिप्टेड. कई बार कुछ रियलिस्टिक चीजों की वजह से कई बार मीडिया जो है अपने आप उस प्रोडक्ट की निगेटिव पब्लिसिटी कर देती है. जैसे अगर कुछ निगेटिव चीजें हैं सर्विस में या प्रोडक्ट में, तो ऐसे केस में जो पब्लिसिटी कई बार निगेटिव भी हो जाता है. सो निगेटिव पब्लिसिटी बहुत इफेक्टिव टूल है, ठीक है, ट्रस्ट के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए एंड प्रमोशन के लिए, बट ये कई बार निगेटिव भी कन्वर्ट हो जाती है. पब्लिक रिलेशन इज समथिंग वेयर द कंपनी आर यूजिंग द डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द public, and in public everyone is the part of this, either the customers, suppliers, government. ठीक है, every people are the part of the public relations. In public relation what kind of strategies are made, like बहुत सारे strategies design, even PR team भी होती है बहुत सारे companies में, वो कुछ नए नए posters बनवाती है, statement करती है, कुछ programs बनाती है. ठीक है, कुछ awareness of welfare programs, CSR programs वगैरह करती है. क्यों करती है? corporate social responsibility programs to basically promote the brand. ठीक है, CSR programs किया, कुछ events करवा दिया. ठीक है, ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली पब्लिक रिलेशंस के लिए होती है, ताकि आपका ब्रांड का इमेज पब्लिक के सामने पॉजिटिव रहे. ठीक है, एंड अवेयरनेस इंक्रीज हो, आपकी सर्विसेज की नॉलेज हो लोगों को. तो पब्लिक रिलेशन जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है, पब्लिक रिलेशनशिप, इसमें बेसिकली कंपनी है ना अच्छा खासा अमाउंट लगाती है, एक्सपेंस करती है. एज कंपैरिजन टू एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन का कॉस्ट कम ही होगा. और लेकिन सबसे लो अगर मैं बोलूं तो आपके पब्लिसिटी का होता है. यहाँ पब्लिसिटी में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाना पड़ता है, बट देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर दिस. मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड हो सकता है पब्लिसिटी में, बट कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. So public relation is something that is for which there are so many strategies are made by the company. So many strategies are made by the company for creating the brand equity, for increasing the awareness of the services and maintaining a harmonious relationship with the different customers, different बोल सकते हैं customers, government and other people, फिर क्रेडिटर्स, एवरी पीपल, मतलब कस्टमर के अलावा भी जितने लोग हैं सबके साथ पब्लिक, मतलब टोटली पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बनाना, सिर्फ कस्टमर के साथ नहीं, पूरे पब्लिक के साथ. क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप? और ये इन एन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व efforts to stimulate
efforts to stimulate positive interest in an organization and its product by sending out news releases ठीक है, news releases, holding press conference staging special events ठीक है, स्पॉन्सरिंग न्यूज वर्दी, या फिर काफी है ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख लिया, स्टेजिंग स्पेशल इवेंट्स, न्यूज रिलीजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पब्लिक रिलेशंस के लिए होता है, ताकि आप पब्लिक के साथ क्या बना सको, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन, और अपने ब्रांड के बारे में भी लोगों को अवेयर करा पाओ, इंफॉर्मेशन दे पाओ। और इसके लिए कई बार कुछ CSR प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स, राइट। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशंस। क्लियर हो गया सबको पब्लिक रिलेशंस क्या हो वगैरह, आप बेसिकली दिखा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहे हो, बट पब्लिसिटी इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ठीक है, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। यस, public relations involves effort to stimulate positive interest in an organization and it's produced by sending out news releases, holding press conference, staging special events, ठीक है, sponsoring CSR projects, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी किस चीज में आ जाएगी, बेसिकली पब्लिक रिलेशंस में, ठीक है। पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बेसिकली कंपनी। जैसे आप लोग नेगेटिव भी पब्लिसिटी प्रोडक्ट की सर्विसेज के हो जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट किसका होता है प्रमोशन के लिए, मीडिया का, ठीक है। जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन पब्लिसिटी, ठीक है। एंड इसको कवर करने के लिए कई बार कुछ स्टोरीज बनाए जाते हैं, कई बार कुछ इवेंट्स होते हैं, प्रेस रिलीजेस होते हैं, फोटोज वगैरह लगाना, वीडियोस वगैरह देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएगी, आपके पर्सनल रिलेशंस में, ठीक है। और PR एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो बेसिकली पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट्स है, उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप, ये पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट्स जो है, इसमें कई बार आपके PR एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अरेंज करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्लियर हो गया पब्लिक रिलेशन सबको। पब्लिक रिलेशन वही जो हम लोगों ने फिजिकल एविडेंस में सारी चीजें की थी, इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स वगैरह, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, बट दैट इज अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, नो वर्बल कम्युनिकेशन इज देयर, बट बिकॉज ऑफ द लोगो एंड ब्रांड वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस ब्रांड इज, ये कौन सा ब्रांड है, कौन सी सर्विसेज देता है, वी विल रिकॉग्नाइज according to that, by that particular things, like interior designing वगैरह जो है वो भी, साइनेज हो गया, और आपके व्हीकल्स वगैरह जैसे मैंने बताया था डोमिनोज यूज करता है, इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म। तो आई थिंक एक तरीके से ये जितने भी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस कॉर्पोरेट डिजाइन, ठीक है, ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन भी होता है, एक तरीके का एजुकेशन भी होता है, एक तरीके का प्रमोशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक तरीके से अवेयरनेस के लिए भी होगा, तो ये सारी वही चीजें होंगी, इंस्ट्रक्शन मटेरियल और कॉर्पोरेट डिजाइन। एनीवन हैव एनी डाउट इन व्हाटएवर वी डिस्कसेस जो होंगे आपके फिजिकल एविडेंस, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन, ठीक है। कुछ बैंक्स वगैरह ने इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटराइज्ड डिस्प्ले वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें, और ये भी चीजें होंगी जैसे कि आपके कार्ड्स वगैरह, यूनिफॉर्म्स वगैरह, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द फिजिकल एविडेंस। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है, एक तरीके का ये पब्लिसिटी फेमस, इट इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है और इसको यूज करने से ये बेनिफिट है, तो ये कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी होना, यानी किसी रिकॉग्नाइज पर्सन, कोई सेलिब्रिटी, कोई VIP, कोई रिनाउंड पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सजेशन देता है आपको, ठीक है, रिकमेंड करता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो नेक्स्ट वन इज पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी के बारे में किसी को कुछ पता है? एनीवन हैव एनी आइडिया?
मैम पुल स्ट्रैटेजी जिसमें कि कोई सामान आया तो कस्टमर अपने से जा रहा है, उसको पुश नहीं करना पड़ रहा है कि ये सामान ले लो, या कुछ उसको क्या बोलते हैं, कोई भी प्रमोशन का स्ट्रैटेजी दिखा के उसको ये नहीं मतलब अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है कि तुम ले लो, वो खुद से आगे बढ़ के आ रहे हैं। और पुश स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है कि इतना वॉल्यूम हो गया, अब उसको खत्म करना है, तो किसी तरीके से कुछ करके कस्टमर्स को पुश करके उनको लेने पे मजबूर करना। कैसा पुल स्ट्रैटेजी का एक एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। टेकिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, टेकिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर यानी प्रोडक्ट को लेकर के खुद कस्टमर तक गए, दैट इज अ पुश स्ट्रैटेजी। ठीक है, टेकिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, टेकिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, दैट इज अ पुश स्ट्रैटेजी। गेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू, गेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू यानी कि वहां खुद आ रहा है कस्टमर, दैट इज अ पुल स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पुश स्ट्रैटेजी एंड पुल स्ट्रैटेजी में जो मैंने एक एक लाइन आप लोग को बताया वो क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, जो पुश स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है विच इन्वॉल्व्स टेकिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। ठीक है, यानी कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराओगे, वो से परचेज करें, वो बिल्कुल इंश्योर करोगे, यानी कि यू विल पुश देम फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट, राइट? एंड इन द पुल स्ट्रैटेजी दे आर बेसिकली फॉर मोटिवेटिंग द कस्टमर, कि उनको बेसिकली हमें प्रेशराइज करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से आकर के प्रोडक्ट को या सर्विस को क्या करे, अवेल करे, परचेज करे, राइट? सो इन पुश स्ट्रैटेजी राइट 2 लाइन्स। पुश स्ट्रैटेजी में 2 लाइन लिखिए, क्या है? लिखिए, a push promotional strategy, a push promotional strategy, a push promotional strategy, a push promotional strategy a push promotional strategy involves taking the product. The push promotional strategy involves taking the product or services directly to the customer via via whatever means MEANS, whatever means, ensuring the customer is aware of your brand, ensuring the customer is aware of your brand at the point of purchase. The push promotional strategy involves taking the product directly to the customer via whatever means, ensuring the customer is aware of your brand at the point of purchase. यानी कि यह जो पुश स्ट्रैटेजी है, दिस काइंड ऑफ टेक्निक इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी और द मार्केटर्स. They are basically pushing the basically customer to purchasing the product kind of. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को लेकर के कस्टमर को सेल करना, यानी प्रोडक्ट को दिखाना, शो करना, उनको प्रेशराइज करना कि आप प्रोडक्ट को परचेज कीजिए. ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? पुश स्ट्रैटेजी में कौन कौन से टैक्टिक्स को यूज करती है कंपनी? ठीक है, जैसे ट्रेड शोज वगैरह, ट्रेड शो प्रमोशन जो है, डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर, डायरेक्ट सेल करना कस्टमर को. ठीक है, इन शोरूम और फेस टू फेस, डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर शोरूम में या तो फेस टू फेस, डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर इन शोरूम एंड फेस टू फेस. पैकेजिंग डिजाइन वगैरह, पैकेजिंग डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले. ठीक है, तो दीज आर द पुश टैक्टिक्स, जहां पर बेसिकली आपको अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू कंपनी क्या करेगी, वो बेसिकली एक तरीके से प्रेशराइज करेगी, एक तरीके से आपको फोर्स करेगी कि आप प्रोडक्ट को खरीद लें. मैम लास्ट में क्या बोली? पैकेजिंग डिजाइन, पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले, ये सारे पुश स्ट्रैटेजी में आते हैं. पुश स्ट्रैटेजी, ठीक है, पैकेजिंग डिजाइन, पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले, trade shows, direct selling to the customer in showroom, face to face, all these comes under the push strategy. यानी प्रोडक्ट को खुद दिखाना कस्टमर को कि ये अवेलेबल है, आप खरीदिए.
पुल स्ट्रैटेजी क्या होता है, लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल स्ट्रैटेजी. A pull strategy involves motivating customers to seek out your brand in an active process. A pull strategy involves motivating customers to seek out यानी वो ढूंढे, समझे, customer to seek out your brand in an active process. ठीक है, यानी कि ये वो स्ट्रैटेजी है जहां पर जो कंपनी है वो सिर्फ क्या करेगी, सिर्फ मोटिवेट करेगी कस्टमर को, इंफॉर्मेशन दे देगी कि भाई देखिए ये वाला चश्मा अवेलेबल है. अब इट्स टोटली अप टू द कस्टमर दैट इफ दे आर इन्फ्लुएंस्ड, दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू सीक, दे आर गोइंग टू सर्च अबाउट योर प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू सर्च अबाउट योर ब्रांड एंड देन आफ्टर दे आर गोइंग टू परचेज इट. ठीक है, सो यानी उनका इंटरनल जो मोटिवेशन होगा, जो उनका बेसिकली परसेप्शन डेवलप होगा, वो किसी चीज जो टैक्टिक्स जो यूज करी कंपनी उसको देखकर वो खुद से मतलब चाहेगा प्रोडक्ट और सर्विस को लेना, यानी विलिंगनेस उसके अंदर खुद रहेगा इन द केस ऑफ पुल स्ट्रैटेजी. बट इन द केस ऑफ पुश स्ट्रैटेजी कंपनी की तरफ से एक इनडायरेक्ट फोर्स होगा, नॉट डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमरिज्म के हिसाब से फोर्स नहीं किया जा सकता, बट दे विल शो यू डिफरेंट प्रोडक्ट की प्लीज परचेज दिस, पॉइंट ऑफ सेल्स या फिर एक डिस्प्ले किस तरीके से आप कर रहे हो. ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पुश स्ट्रैटेजी है, पुल स्ट्रैटेजी जहां पर कस्टमर को आप खुद मोटिवेट कर रहे हो. इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, पुल टैक्टिक्स क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, सीआरएम हो गया, फिर आपका सेल्स प्रमोशंस हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गया, मास मीडिया प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड डिस्काउंट्स. ठीक है, These are the examples of pull tactics और कह सकते हैं कि pull strategy. Push and pull strategy. किसी को कोई डाउट है इन दोनों टॉपिक में? तो कई बार जो उनकी ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू जो है बेसिकली, ठीक है, कुछ लोगों को तो पहले आपके ब्रांड के बारे में पता है, ठीक है, तो उसमें पुश स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क कर जाता है. थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करोगे, दे विल परचेज द प्रोडक्ट, थोड़ा सा कम्युनिकेट करोगे, दे विल परचेज द प्रोडक्ट, राइट. इन द पुल स्ट्रैटेजी यू विल मेक अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, यू विल टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स एंड ऑल. मतलब आप एडवर्टाइज करोगे मास मीडिया में, मतलब मास मीडिया का यूज करोगे, मास कंज्यूमर को टारगेट करोगे, बट आप तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, फाइनली पुल स्ट्रैटेजी को यूज कीजिएगा. आप सिर्फ उनको नॉलेज दे दीजिएगा, अवेयरनेस दे दीजिएगा, बट यू विल नेवर फोर्स देम टू परचेज द प्रोडक्ट. बट इन द केस ऑफ पुश स्ट्रैटेजी यू विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस, यू विल ट्राई टू शो दिस प्रोडक्ट कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए. ठीक है, तो पुश स्ट्रैटेजी इज समथिंग फॉर वेयर वी आर बेसिकली हम खुद प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं कस्टमर के पास, और पुल स्ट्रैटेजी के कस्टमर खुद उसको खरीदने आ रहे हैं आपके पास. क्लियर हो गया तोशी? यस मैम, बेसिकली ये एम है प्रमोट करने का. हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे.